very good morning to all of you. Once again, I welcome you all in the today's video session. But before starting our today's video session, I would like to convey a very important notice to all of you. As you all know that school have been conducting online classes from the lockdown period. But now we the teachers and the school are going to take your classes through Zoom application. Okay? तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर में जाकर जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले और जो भी टीचर आपका क्लास लेंगे थ्रू जूम एप्लीकेशन आपको व्हाट्सएप पर एक लिंक सेंड कर देंगे। आपको लिंक पे क्लिक करके मीटिंग को ज्वाइन करना है। वो गिवन टाइम दिया रहेगा। अगर आप उस गिवन टाइम में ज्वाइन नहीं करिएगा तो आप फिर ग्रुप में जो मीटिंग ग्रुप है उसमें ज्वाइन नहीं हो सकते हैं। आपको एक गिवन टाइम दिया जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ज्वाइन द मीटिंग ऑन अ स्पेसिफिक टाइम। एंड ये क्लासेस कब से होंगे? तो टुडे विल बी that is Thursday will be the last video that will be uploaded by me, and from Saturday I will be taking your class on Zoom application from 10 o'clock to 10:40 am. I hope it is clear. आपको जूम एप्लीकेशन का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा। आपको वहां पर क्लिक करके जूम एप्लीकेशन पे जाकर उस लाइव मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होगा, इंफॉर्मेशन होगा, वो आपको आपके ग्रुप में दे दिया जाएगा। ओके, तो आज का सेशन हम लोग वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल बी studying on Zoom application. So you all lovely students are requested to join the Zoom application as it would be very fun to study from Zoom application. Okay, that was all from my side regarding notice and information. And as you all know that we have been studying triangles chapter, so today we will look some important questions on triangles. So let's start our today's video. Questions on triangles. The first question which I am taking today is a very easy question. The question is, in a triangle XYZ, in a triangle XYZ, if angle X is equal to 90 degree and angle Z is equal to 48 degree, find angle Y. This is a question. The question is, in a triangle XYZ, if angle X is equal to 90 degree, Z equal to 48 degree, find angle Y. As we know that the sum of all angles of a triangle is equal to 180 degrees. So what we can write, angle X plus angle Y plus angle Z is equal to 180 degree. And what will be the reason? Angle sum property. तो एंगल एक्स कितना है? 90 डिग्री प्लस एंगल वाई कितना है निकालना है, प्लस एंगल जेड कितना है 48 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 8 प्लस 0 विल बी 8 एंड 9 प्लस 4 विल बी 13. 138 डिग्री प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल वाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री. 10 minus 8 2 and 17 minus 13, that will be 4. 42 degree. So what is the value of y? The value of y is 42 degree. बहुत ही आसान क्वेश्चन था. I hope you all can solve it. The next question is an important question. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप सब लोग बना सकते हैं. Next question is, one of the angles of a triangle is 100 degree and the other two angles are equal. Other two angles are equal. Find each of the equal angles.
This is the question. One of the angles of the triangle is 100 degree and the other two angles are equal. You have to find the equal angles. Okay, we have a triangle in which one angle is 100 degree and the other two angles are equal. आप ही बताइए, अगर दोनों एंगल्स इक्वल है तो मीन्स दैट दोनों का मेजरमेंट भी सेम होगा, तो मेजरमेंट को मैंने x मान लिया. ओके, नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. What is angle A? Angle A is x. What is angle B? 100 degree. And what is angle C? X is equal to 180 degree. So x plus x will be equal to 2x is equal to 180 degree plus 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? minus 100. So 2x is equal to 180 minus 100. You all have understood it that 2x is equal to 180 minus 100. So 2x will be equal to 80 degree and x will be equal to 80 divided by 2, that is 40 degree. This implies that equal angles measure 40 degree. तो दोनों equal angles का measurement कितना होगा? 40 degree. Okay, let's move on to next question. The next question which we are taking is question number 3. Each of the two equal angles of an isosceles triangle is twice the third angle. Is twice the third angle. Find the angles of the triangle. This is the question. The question is each of the two equal angles of an isosceles triangle is twice the third angle. Suppose you have an isosceles triangle. इसका नाम मान लेते हैं A, B और C. तो isosceles triangle में दो साइड्स और दो एंगल्स इक्वल होते हैं, as you all know. तो एंगल B और एंगल C मान लेते हैं कि दोनों एंगल्स क्या हैं आपस में इक्वल, और AB और AC साइड्स क्या है? इक्वल. तो दो एंगल्स कौन कौन इक्वल हो गए? B और C. व्हाट इज द कंडीशन? द कंडीशन इज ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल. तो ये अगर ये दोनों इक्वल एंगल है तो इन दोनों का मेजरमेंट क्या है? ट्वाइस द थर्ड एंगल. जो ये थर्ड एंगल है तो थर्ड एंगल को अगर हम लोग x मान ले तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 2x. और ये भी कितना हो जाएगा? 2x, बिकॉज बोथ आर इक्वल. तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेट द थर्ड एंगल बी x. Let the third angle of isosceles triangle be x degree. थर्ड एंगल को क्या मान लेते हैं? x डिग्री. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल एंगल्स विल बी, इक्वल एंगल्स कितने हो जाएंगे? 2x डिग्री, क्योंकि जस्ट डबल है. नाउ व्हाट वी नो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. इसको क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी. तो एंगल A कितना है? एंगल A कितना है? यू ऑल कैन सी इट इन द फिगर. एंगल A इज x and B and C will be 2x because both are equal. So angle A is equal to x degree, B is equal to 2x degree and C is equal to 2x degree is equal to 180. 2 to 4 plus 1, 5x is equal to 180 degree. So x is equal to 180 degree divided by 5. 5 3s are 15 and 5 6 are 30. So what is the value of x? The value of x is 36 degree. Now we can find all the angles. So what will be angle A? Since angle A is x, so angle A is x degree, so angle A will be 36 degree. What is angle B? Angle B is 2x degree, so 2 into 36
will be equal to 72 degree and again एंगल C is 2x डिग्री, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल C is equal to 2 into 36 degree, again 72 degree. Okay, I hope it is clear to everyone. Let's take some other questions as well. The next question which we are taking today is a very important question. If one angle of a triangle is equal to sum of other two, so that the triangle is right angled. This is a very important question. The question is if one angle of a triangle is equal to sum of other two, कोई भी ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो बाकी दोनों एंगल्स के सम के बराबर है, तो ये बताइए कि ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लेट अ ट्रायंगल ABC मान लेते हैं, इन विच वी हैव थ्री एंगल्स नेमली एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ओके, मान लीजिए कि हमने मान लिया कि एक ट्रायंगल है ABC, उसमें तीन एंगल्स होंगे, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, कौन किसके बराबर ये नहीं बोल रहा है, लेकिन कोई भी एक एंगल बाकी दोनों के सम के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, कोई भी एक एंगल यानी कि एंगल A किसके इक्वल है, बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल, तो एंगल B प्लस एंगल C। ठीक है, कोई भी एक एंगल, ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर B और C है। अगर जो मिसिंग एंगल है, एंगल A जो मिसिंग है, अगर वो रहता तो हम लोग कह सकते थे कि A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो उसको सेम करने के लिए क्या करते हैं, एडिंग एंगल A ऑन बोथ साइड, अपने मन से दोनों तरफ क्या ऐड कर दिए, एंगल B। आप एंगल B भी ऐड कर सकते थे, एंगल B अगर ऐड कर देते तो B प्लस B 2B हो जाता, तो मेरे पास वैसा फिर फॉर्म नहीं बनता कि हम सॉल्व कर सकते थे। अगर आप यहां पर लिखते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C और तब B ऐड करते हैं तो आपका सेम आता। तो एडिंग एंगल A ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A। तो A प्लस A कितना हो गया, 2 एंगल A, और A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसी को क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल A का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब जब एक एंगल 90 डिग्री आ गया तो कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। कोई किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है तो एक वो ट्रायंगल कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो वी कैन राइट दैट दस ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल, या फिर राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट A। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और कहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, A पे। तो A B C, तो A इक्वल टू कितना है हम लोग का, 90 डिग्री। तो आपसे ही पूछ रहा था कि बताइए अगर कोई भी एक एंगल बाकी दोनों एंगल्स के सम के बराबर है तो ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल A जो है वो 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री यानी कि कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। ओके, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The question is, what is the measure of each angle of an equilateral triangle?
question number 5. The question is, what is the measure of each angle of an इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स का मेजरमेंट क्या होता है? तो सिंपल, सबसे पहले तुमको ये मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। क्या जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा एंगल्स इक्वल होता है। लेट इक्वल एंगल्स बी एक्स डिग्री। तो इक्वल एंगल्स के मेजरमेंट को हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स डिग्री। कैसा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। सारा एंगल्स इक्वल होगा तो सब एंगल्स इक्वल का मतलब है अगर ये एक्स डिग्री तो ये भी एक्स डिग्री और ये भी कितना? एक्स डिग्री। ओके, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेजर, मेजर बताना है, इसीलिए हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल ए कितना? एक्स, बी भी कितना? एक्स, सी भी कितना? एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स कितना? 3x। 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या आप एक्स के वैल्यू निकाल सकते हैं? x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3। कितनी बार में कट गया? 60 बार में। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। यानी कि सारे एंगल्स का मेजरमेंट क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, बिकॉज ऑल द एंगल्स आर इक्वल। तो क्या लिख सकते हैं? वेट अ सेकंड। तो क्या लिख सकते हैं? हेंस ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल are same measuring 60 डिग्री ईच। क्योंकि लेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सबका मेजरमेंट कितना होता है? 60 डिग्री ईच। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द टुडेज वीडियो। डू रिमेंबर टू वॉच इट टिल द एंड so that you can understand the chapter very well. Thank you all. Have a good day.